أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ العظیم۔ آج کی تقریر میں ہم فلسفہ نور و بشر پہ قرآن پاک سے مدلل گفتگو کریں گے۔ در حقیقت نور و بشر کا مسئلہ مکمل طور پر روحانی ہے، اسی لیے علماء کرام اس معاملے کو آج تک سمجھ نہیں پائے۔ نور و بشر کا روحانی پہلو حصہ دوم میں بیان کیا جائے گا۔ آج صرف قرآن پاک سے یہ ثابت کیا جائے گا کہ ائمۃ المضلین کا فلسفہ برائے نور و بشر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور سے تھے، در حقیقت نوری تھے اور ظاہراً آدمی تھے، وغیرہ وغیرہ، سراسر بے بنیاد اور مشرکانہ ہے۔ ائمۃ المضلین کہتے ہیں کہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں در حقیقت مخاطب مشرکین ہیں۔ پہلے یہ آیت پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ وویل للمشرکین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، میں صرف تمہاری طرح ایک انسان ہوں، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، سو اسی کی طرف سیدھی راہ پر لگے رہو اور اس کی حفاظت مانگو، اور مشرکوں کے لیے افسوس ہے۔ اس آیت میں مخاطب در حقیقت مشرکین ہیں۔ یہ اس لیے کہ مشرکین کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہماری طرح ہی انسان ہیں، لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح کا انسان کہنا مشرکین کا کام ہے۔ یہ ائمۃ المضلین کا عقیدہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرح کا انسان نہ ماننا بلکہ نوری مخلوق ماننا مسلمانوں کا کام ہے۔ ائمۃ المضلین کی یہ تعویل صرف آدھی آیت کی ہے، اور آدھی آیت کی تعویل کر کے عوام کو سنائی جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملہ کی اصل حقیقت کیا ہے۔ در حقیقت جب انبیاء علیہ السلام نے دعوت حق دی تو ان کی قوموں نے آرگومنٹ کیا کہ آپ تو ہمارے جیسے انسان ہی ہیں، ہم آپ کی بات کیوں مانیں؟ ہم تو تب مانیں گے جب آپ ثابت کریں کہ آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں، یعنی کہ آپ معجزات دکھائیں، خرق عادات دکھائیں، یا کوئی مافوق الفطرت چیز دکھائیں، جیسا کہ سورہ ابراہیم میں واضح کیا گیا ہے کہ قوم نوح، عاد و سمود نے اپنے انبیاء کو کہا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین۔ انہوں نے کہا، تم بھی ہمارے جیسے انسان ہو، تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس سے روک دو جس کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، تو ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ مشرکین نے جناب نوح، جناب صالح اور جناب ہود علیہ السلام کو بھی یہ کہا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، اور تم ہمیں روکتے ہو اس کی عبادت سے جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، تو ہمارے سامنے کوئی کھلی سند لاؤ،
यानी हमें कोई ऐसी चीज दिखाओ कि हमें तुम्हारी बात का यकीन आ जाए। दूसरे अल्फाज में उन्होंने अपने अंबिया से किसी खर्क आदत की डिमांड की कि उनको कोई माफूकुल फितरत चीज दिखाई जाए या उनको कोई मोजा दिखाया जाए ताकि वो उनकी बात मान सकें। जवाब में उनके अंबिया ने कहा, क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाअ मिन इबादिही वमा काना लना अन नातियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुअमिनून। उनके रसूलों ने उन्हें कहा कि हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह अपने बंदों में से जिस पर चाहता है एहसान करता है, और ये हमारा काम नहीं कि हम तुम्हारे पास सवाए अल्लाह के हुक्म के कोई सनद लाएं, और चाहिए कि मोमिन अल्लाह ही पर भरोसा करें। तो मालूम हुआ कि मुशरिकीन के इस सवाल के जवाब में रसूलों ने कहा कि हम तुम्हारे जैसे ही इंसान हैं, लेकिन अल्लाह ने हम पर खास एहसान किया है कि हमें चुन लिया है नबूवत के लिए, और साथ ये बता दिया कि ये हमारा काम नहीं कि हम कोई मोजा अल्लाह के हुक्म के सिवा ला सकें, कोई सनद ला सकें। तो मालूम हुआ कि पुरानी कौमें भी अपने अंबिया को यही कहती थीं कि क्योंकि तुम हमारे जैसे इंसान हो तो हम तुम्हारी बात क्यों कर मान सकते हैं, हम तुम्हारी बात तब ही मानेंगे जब तुम कोई माफूकुल फितरत चीज दिखाओ, कोई मोजा दिखाओ। इसी तरह सूरह अल हिज्र में आयत नंबर 7 में मौजूद है कि मुशरिकीन ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, लौ मा तातीना बिल मलाइकति इन कुन्त मिनस सादिकीन, तू फरिश्तों को हमारे पास क्यों नहीं ले आता अगर तू सच्चों में से है। यहाँ तक कि सूरह बनी इसराइल में मौजूद है कि मुशरिकीन ने तो हद ही कर दी। लिखा है कि वक़ालू लन नु'मिना लका हत्ता तफजुर लना मिनल अर्ज़ि यंबुआ, और कहते हैं हम तुझ पर ईमान नहीं लाएंगे यहाँ तक कि तू हमारे लिए इस जमीन से चश्मा बहा दे। औ तकून लक जन्नतुम मिन नखीलिन व इनबिन फतुफज्जिरल अनहार खिलालहा तफजीरा, या तेरा खजूरों और अंगूरों का बाग हो, फिर तू उसके अंदर खूब नहरें बहा निकाले। औ तुस्कितस समा कमा ज़अमत अलैना किसाफन औ तातिया बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला, या तू आसमान को जैसा कहा करता है टुकड़े टुकड़े करके हम पर गिरा दे, या तू अल्लाह और फरिश्तों को सामने ले आए। औ यकून लका बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तरक़ा फ़िस समा वलन नु'मिना लिरुक़िय्यिका हत्ता तुनज़्ज़िला अलैना किताबन नक़रऊहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला। या तेरा सोने का घर हो या तू आसमान में चढ़ जाए, और हम तेरे चढ़ने को भी नहीं मानेंगे जब तक कि तू हम पर किताब न उतारे जिसे हम पढ़ लें। कह मेरा रब पाक है, मैं सिर्फ एक बशर रसूल हूँ। तो इन आयात से मालूम हुआ कि मुशरिकीन इस हद तक चले जाते हैं कि वो अपने अंबिया से ऐसे ऐसे अजीबो गरीब मोज़े या माफूकुल फितरत चीजों की डिमांड करते हैं कि इंसान परेशान हो जाता है। अब यहाँ देख लीजिए कि ये डिमांड कर रहे हैं कि हम तो तुम्हें तब मानेंगे जब तुम जमीन से चश्मा बहा दो, या तुम्हारा खजूरों और अंगूर का बाग हो फिर इसके अंदर खूब नहरें निकालो, या आसमान को टुकड़े टुकड़े करके हम पर गिराओ, या अल्लाह और फरिश्तों को हमारे सामने ले आओ, या आपका सोने का घर हो या आप आसमान में चढ़ जाएं।
बल्कि हम आसमान में चढ़ने को भी नहीं मानते जब तक आप हम पर किताब ना उतारें जैसे हम पढ़ ले। देखिए कुफार व मुशरिकीन ने कितने बड़े बड़े मोजज़ात और माफूकुल फितरत चीजों की डिमांड की। जवाब में क्या फरमाया अल्लाह ने, हुक्म दिया आका को कि कहो मेरा रब पाक है, मैं सिर्फ एक बशर रसूल हूँ, मैं इंसान हूँ, ये जो तुम कहते हो ये करना मेरे इख्तियार में नहीं। साथ ही सूरह बनी इसराइल में फरमाया उल्लौ कान फिल अर्ज़ मलाइकतुन यमशून मुतमइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकन रसूला। कह अगर जमीन में फरिश्ते इत्मीनान से चलते फिरते तो जरूर हम उन पर आसमान से फरिश्ता और रसूल बनाकर भेजते। ये जो लोग अजीबो गरीब किस्म की माफूकुल फितरत चीजों की डिमांड कर रहे थे, ये मुशरिकीन और कुफार, तो जवाब में अल्लाह ने क्या फरमाया? अल्लाह ने कहा कि अगर जमीन में इंसान ना बसते, इंसान ना रहते, बल्कि फरिश्ते रहते, फरिश्ते बाजारों में होते, फरिश्ते जमीन में रहते, चलते फिरते, तो फिर हम किसी इंसान को रसूल बनाकर ना भेजते, बल्कि उन फरिश्तों के दरमियान फरिश्ते को ही रसूल बनाकर भेजते। तो इन बातों से मालूम हुआ कि ये मुशरिकीन का एक खास अंदाज है कि वो मुशरिकीन अपने अंबिया से हमेशा ये कहते रहे हैं कि हम तुम्हें नहीं मानते क्योंकि तुम हम जैसे इंसान हो, तो साबित करो कि तुम हम जैसे इंसान नहीं हो। कैसे साबित करो? अजीबो गरीब हरकतें करके दिखाओ, माफूकुल फितरत चीजें दिखाओ, मोजज़ात दिखाओ, खर्क आदात दिखाओ, फिर हम मानेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो। और अगर तुम ये चीजें नहीं दिखाओगे तो हम हरगिज नहीं मानेंगे कि तुम अल्लाह के रसूल हो या तुम्हें अल्लाह ने भेजा है। इसी तरह सूरह कहफ की आखिरी आयत में इस बात को बताया गया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। कह मैं सिर्फ तुम्हारी तरह बशर हूँ, लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। गौर कीजिए, अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि इन मुशरिकीन से कहो कि मैं सिर्फ तुम्हारी तरह ही बशर हूँ, इंसान हूँ, लेकिन मेरी तरफ वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। दरअसल मुशरिकीन ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सवाल किया था कि असहाब कहफ और जुल्करनैन कौन थे। मुशरिकीन का ख्याल था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बातों का जवाब ना दे पाएंगे और झूठे पड़ जाएंगे। फिर जब अल्लाह ने इन सवालों का जवाब बजरिया वही दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन को यकीन दिलाया कि देखो मैं इन बातों को ना जानता था क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और अल्लाह ने मुझ पर वही की तो मुझे मालूम हुआ और मैंने तुम्हें बताया कि असहाब कहफ और जुल्करनैन कौन थे। सूरह फुरकान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वक़ालू मा लिहाज़र रसूल याकुलु त्ताआम व यमशी फिल अस्वाक़ लौला उन्ज़िला इलैहि मलकुन फयकून माहू नज़ीरा। और कहते हैं ये कैसा रसूल है जो खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है, क्यों इसकी तरफ फरिश्ता ना उतारा गया तो वो इसके साथ होकर डराने वाला होता। तो कुफार और मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उन्जुर कैफ ज़रबू लकल अमसाल फज़ल्लू फला यस्ततीऊन सबीला। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखिए आपके लिए ये कैसी मिसालें बयान करते हैं, सो वो गुमराह हो गए हैं, बस रास्ता नहीं पा सकते। तो मालूम हुआ कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को गुमराह करार दे दिया जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अजीब व गरीब गैर इंसानी बातों की तवक्को रखते थे।
یہ وہ تمام چیزیں جو وہ مانگتے تھے، مافوقل فطرت و غیر انسانی چیزیں، یہ میں بیان کر چکا ہوں قرآن پاک کی آیات سے۔ تو یہاں پہ ایک کنکلوژن نکلا کہ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بارے میں یہ جیسی مثالیں بیان کرتے ہیں، یہ گمراہ لوگ ہیں، یہ راستہ نہیں پا سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بدقسمتی سے ائمۃ المضلین کا عقیدہ دراصل انہی مشرکین کے عقیدے کی عکاسی کرتا ہے۔ آج بھی ائمۃ المضلین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غیر انسان ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ یہ انہی مشرکانہ عقائد کی باقیات ہیں۔ یہ مشرکین اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کرتے تھے غیر انسانی رویوں کا، مافوق الفطرت حرکات کا، خرق عادات کا، اور اسی ٹریک کو فالو کرتے ہوئے یہ لوگ آج عوام کو یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسان نہیں تھے بلکہ غیر انسان تھے،